हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग। So capital budgeting is a very important topic. So in this, first of all, we are starting what are basic concepts which are used in capital budgeting, and then we will discuss different methods of capital budgeting, which are classified into two categories. One is a traditional method, second is a modern methods. So first of all, let us see what is the meaning of capital budgeting. So capital budget simply means expenditure on asset. So technically we say that capital budget so it is expenditure so on purchase of asset. So it means capital budgeting we can say that it refers to whenever we make expenditure for a project. So we can say that in finance terms, so capital budgeting means expenditure so incurred on purchase of asset, purchase of an asset or a project. It means we can purchase single asset or it may be a project. Project is normally a combination of different assets. So what we include in a project? Suppose we are starting a factory. A factory is being, let us say, set up. So for this purpose, we require investment in different assets. Like we have to purchase land and building. So we have to make expenditure on plant and machinery. We have to make expenditure for fixture and fitting. So it means in case of a capital budgeting, it may be expenditure on a single asset or it may be expenditure on a group of assets, which is also called a combination of different assets, which is collectively called a project. So it means whenever we make investment in a project, objective is to find out whether this investment is profitable or not. So what is our objective of this capital budgeting? So we can say that the main objective is to determine so if investment which is made so in a project or it may be single asset also. It means whenever we purchase an asset or we install a project or start a project, so money is invested, which is called investment made. So we have to determine whether this investment is profitable or not. So to determine if investment made in a project is profitable or not. It means if this investment will provide profit, only then we will make investment in this project. So our objective is main to determine profitability of this project. To determine this profitability, so we have different terms which are used in a capital budgeting. So normally, so first of all, we say that so when we purchase asset or when we make investment in a project, so we have to make investment. So this is called initial investment. So initial investment in a project or asset. So this is denoted by I0. Initial means present time period, zero time period, when a project is started. So in this, what items are included in initial investment? So you will purchase different assets. So we will take what is the cost of assets purchased. So in cost, we include purchase price plus expenses on purchase plus installation expenses. So cost of assets purchased includes purchase price plus expenses on purchase of asset and plus installation expenses.
So all these together are called total cost of asset. And plus we also require some working capital to carry on a business activity. It means plus we have to add how much money is invested in working capital, which is called investment in working capital. Working capital simple definition is excess of current assets over current liabilities. It means when we start a project, we have to make investment in like inventory. We have to keep some balance in bank, and sometimes we avail some facility from creditor. So therefore, working capital is current assets minus current liabilities. So all this money is invested in zero time period. So it is also called initial outlay because cash is going. So it is also called initial outlay. Outlay means money invested in a project. Cash is going, so this is also called cash outflow. So next we have to determine what will be expected life of this asset or project. It means second term is our what is the expected life of asset or project. Normally life is given in years, maybe 3 years, 5 years, 10 years. So that will be given to us, so it is denoted by n number of years. So then we have to determine what will be benefit from this project over its life. So third term is what will be expected benefit from investment in project. And this benefit will calculate in future time when money has been invested in a project. So this is expected benefit from project in from investment in project in future periods. तो मीन्स इसको हम डिफरेंट यदि हम टाइम लाइन पर शो करते हैं तो आपका इस टाइप से टाइम लाइन बन जाएगी पूरे की जीरो पीरियड कि जब हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट में उसको हम कहते हैं जीरो पीरियड जिसे कहा गया प्रेजेंट टाइम पीरियड तो उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट की गई जिसे आई जीरो इनिशियल जिसे आल्सो कहा गया कैश आउटफ्लो क्योंकि आपकी मनी इन्वेस्ट हो रही है प्रोजेक्ट में सो मनी गोइंग सो जिसे कहा गया कैश आउटफ्लो आल्सो। अब आपने लाइफ डिटर्मिन कर ली है सपोज एक्सपेक्टेड लाइफ है आपकी 5 ईयर्स से 3 ईयर्स और 10 ईयर वट एवर इज गिवन। फिर आपको देखना है फ्यूचर में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा प्रोजेक्ट से दैट विल बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर। इट मीन्स इन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर जिसको हम नाम देंगे हम जिसे कहा गया ए आल्सो एनुअल बेनिफिट फ्रॉम प्रोजेक्ट। बेनिफिट मीन्स जैसे अब आप सेल्स करेंगे उसकी कॉस्ट इनकर होगी तो उन सबको कंसीडर करके हम इसका बेनिफिट कैलकुलेट करेंगे और नॉर्मली जो बेनिफिट होता है ये हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैश मीन्स कैश में कितना बेनिफिट हो रहा है तो दिस बेनिफिट की कैलकुलेट की जाएगी कैश बेनिफिट विच इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर पर एनम। तो उसके लिए हम प्रिपेयर करेंगे इनकम स्टेटमेंट। इट मीन्स ये आपकी बन जाएगी एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट बाय प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट। लेट अस सी परफॉर्मा ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ये जो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं या जो भी मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे में ये सिर्फ उसी का बेनिफिट हम कैलकुलेट करेंगे तो किसी जो इनकम स्टेटमेंट और इससे हम कैलकुलेट करते हैं वट इज अवर एनुअल बेनिफिट। तो आप शो कर सकते हैं डिफरेंट ईयर्स हैं आपके पास लाइक फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड जितने भी ईयर्स हैं सपोज लाइफ है आपकी 5 साल की तो 5 ईयर की इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। तो सबसे पहले आपको मिलेगी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से कितनी सेल्स अचीव हो रही हैं आपकी तो बता रहा सेल्स और इट आल्सो कहा दो सेविंग्स आपको कितनी मिल रही हैं इस प्रोजेक्ट से। तो उसको हम ये भी कहते हैं इंक्रीमेंटल सेविंग है जिस ओनली फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। तो इसके फिर एक्सपेंसिव कितने हैं सेल्स है तो हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स और एक्सपेंसिव। तो मेन जो एक्सपेंसिव हैं आपके जैसे मटेरियल आप परचेज करेंगे मटेरियल की कंजम्पशन हो रही है लेबर के एक्सपेंसिव हैं ओवरहेड्स हैं तो मेजर एक्सपेंसिव आर मटेरियल लेबर एज वेल एज ओवरहेड्स से उनको आप कंसीडर कीजिए एवरी ईयर तो उसमें से आप एक्सपेंसिव लेस कीजिए
तो बैलेंस आपको मिलेगा तो किसी का जो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, जैसे आपने वैसे परचेज किया है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। अभी हमने उसको कंसीडर नहीं किया डेप्रिसिएशन को, तो देयरफॉर किसी का जो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको कहते हैं पीबीटी। तो हर साल की कैलकुलेट हो जाएगी। तो सिंगल शो कर रहा हूँ जैसे मैं। अब इसमें से आप लेस कीजिए डेप्रिसिएशन, जो आपकी चार्ज होगी एसेट्स के ऊपर माइनस डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। सो बैलेंस विल बी अवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसे जो पीबीटी, इसके ऊपर टैक्स चार्ज हो जाएगा, जिसे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये हर साल की चल रही है आपकी इनकम स्टेटमेंट, ये बेसिक परफॉर्मेंस है। पर अब हमें कैलकुलेट करना है कैश में कितना प्रॉफिट है। अब जो डेप्रिसिएशन होती है आपकी, ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, क्योंकि हम ये एसेट के ऊपर चार्ज करते हैं, इसको कैश में पे नहीं करते हैं हम। ये डेप्रिसिएशन इज जो नॉन कैश एक्सपेंस। तो इतनी जब आपको ये कैलकुलेट करना है कैश में कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो इस डेप्रिसिएशन को आप ऐड बैक कर लीजिए, एड डेप्रिसिएशन जो आपने चार्ज की थी पहले। तो दिस विल बी अवर कैश बेनिफिट। तो इस तरीके से आपका कैश का बेनिफिट आ जाएगा हर साल, एवरी ईयर, कैश बेनिफिट पर एनम फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। अब इसकी कुछ और टर्म्स देखते हैं जो हम यूज़ करते हैं इसमें। तो इसमें देखिए एक टर्म है हमारी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। अभी जब डेप्रिसिएशन हमने माइनस नहीं की, इसमें ये हमारा कैश प्रॉफिट है। पर जब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुई तो इसमें से उसमें टैक्स भी माइनस नहीं हुआ, तो इसलिए इसको हम ये भी कहते हैं, एक लिहाज कहा गया कि कैश फ्लो, बट जिसे जो बिफोर टैक्स। तो कैश फ्लो मीन्स कैश में प्रॉफिट हमें रिसीव हो रहा है, बट जिसे बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी कैश फ्लो का मतलब होता है इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। जब आपका डेप्रिसिएशन माइनस हो जाती है ये प्रॉफिट बन जाता है आपका, बट जिसे बिफोर टैक्स, इसका नाम यही है, जिसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और जब उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर रहे हैं वो बन जाता है कैश बेनिफिट। तो किसी का उसको कहा गया कि कैश फ्लो, इसको हम कहते हैं कैश फ्लो, बट दिस इज आफ्टर टैक्स। ठीक है, इसमें जब डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो गई है प्रॉफिट में वो बन जाता है कैश फ्लो। अब ये बिफोर डेप्रिसिएशन वाला होता है बिफोर टैक्स, और जब डेप्रिसिएशन आपकी पैक में ऐड होती है, टैक्स ऑलरेडी माइनस हो गया है, जिसे कहा गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में शो करते हैं CFAT, और इसका सिंपल नेम है जिसे कैश इनफ्लो। तो उसको हम कैश इनफ्लो भी कहते हैं। तो बेनिफिट आपको रिसीव होगा कैश में, तो देयरफॉर जिसे कैश इनफ्लो, कैश इज रिसीव्ड और कैश इज कमिंग, CIF। तो आप CFAT भी शो कर सकते हैं, CIF भी शो कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। तो हमने देखा डिफरेंट टर्म्स इनकम स्टेटमेंट की कैसे बेनिफिट कैलकुलेट करना है। तो एक तरीके से एक बेनिफिट है आपका, एक तो है प्रॉफिट। बेनिफिट में एक टर्म है हमारी प्रॉफिट। प्रॉफिट हम लिखे हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पर इसमें कैपिटल बजटिंग में मेन टर्म हम यूज़ करते हैं कैश प्रॉफिट। तो इसमें अब इस प्रॉफिट में जब हम डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देते हैं जो अपनी चार्ज की है, ये बन जाता है हमारा कैश फ्लो। इट मीन्स कैश फ्लो की डेफिनेशन है प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन, विच इज कॉल्ड कैश फ्लो। वो आप देख सकते हैं कि हमें चाहिए होता है वैसे नॉर्मली आफ्टर टैक्स, इफ टैक्स इज गिवन, और यदि टैक्स नहीं है तो फिर आपका बिफोर बन जाएगा। तो इसी को हम एक इक्वेशन की फॉर्म में शो कर सकते हैं। सेल्स रेवेन्यू जो है हमारा, किसी जासू कहा गया रेवेन्यू, या जो सेविंग्स हो रही है ये रेवेन्यू है हमारा। एक्सपेंसिव कॉस्ट ऑफ सेल है। तो देखो आपका ये फार्मूला बन जाएगा, मटेरियल कैश इनफ्लो इज इक्वल टू रेवेन्यू, उसमें से माइनस कीजिए आप कॉस्ट्स, उसमें से माइनस कीजिए डेप्रिसिएशन, जिसे कि डी उसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स 1 माइनस की, और प्लस कर लीजिए डेप्रिसिएशन। इसको हम इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। तो आर माइनस सी को बना लीजिए आफ्टर टैक्स। इट मीन्स मैंने 1 माइनस सी को पहले आर माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर माइनस बी है, माइनस बी उसको बनाया हमने आफ्टर टैक्स, और डी आपका एड बैक हो गया। तो यू विल सी गेट कैश इनफ्लो इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, जिसे आफ्टर टैक्स। इसकी ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएंगे, एंड माइनस माइनस प्लस टी इंटू डी,
So you will get plus P into B. P into D होता है जो डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है उसके ऊपर हमें टैक्स सेविंग कितनी मिल रही है, तो P into D की कॉल जो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रीशिएशन। टैक्स सेविंग को टैक्स शील्ड भी कहते हैं। तो उसमें कई बार हम डायरेक्ट फार्मूला भी अप्लाई कर रखे हैं, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करो उसको डायरेक्टली बना लो आफ्टर टैक्स से, और जो डेप्रीशिएशन है उसकी टैक्स सेविंग ऐड कर दो, क्योंकि आपने डेप्रीशिएशन एक बार पहले माइनस की थी बाद में प्लस की थी, वो कैंसिल हो जाती है। उसका पर्पज़ यही था कि टैक्स में हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब डेप्रीशिएशन लेस होगी उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, उससे टैक्स हमें कम पे करना पड़ेगा, तो वो हमारी टैक्स सेविंग हो जाएगी। ये हमारा बेसिक पर्पज़ है डेप्रीशिएशन को एडजस्ट करने का कैश फ्लो में। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म आती है, ये हमने डिस्कस किए भी 3 टर्म्स, इनिशियल कैश आउटफ्लो, फिर हमने देखा एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, थर्ड टर्म देखी हमने एनुअल कैश बेनिफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्थ टर्म आती है टर्मिनल कैश इनफ्लो। टर्मिनल का मीनिंग होता है एट एंड ऑफ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट आपको कितना कैश इनफ्लो मिलेगा। इट मीन्स कैश इनफ्लो एट एंड ऑफ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। इट मीन्स एट एंड में देखो क्या आपके पास इक्वेशन है, जीरो पीरियड में आपने इन्वेस्टमेंट की थी एसेट में, और प्लस कुछ वर्किंग कैपिटल में हमने मनी इन्वेस्ट की थी, फिर आपने कैलकुलेट किया है एवरी ईयर यू गेट कैश इनफ्लो। अब आता है लास्ट ईयर विच इज लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। तो लास्ट में क्या होगा, जो एसेट परचेज की थी वो आपकी सेल हो जाएगी, एसेट इज सोल्ड। तो इसको जब आप उसकी WBB से कंपेयर करेंगे दैट विल बी अवर कैपिटल गेन और लॉस, और प्लस जो आपने मनी इन्वेस्ट की थी वर्किंग कैपिटल में जैसे स्टॉक में कैश बैलेंस था वो आपको रिकवर हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एंड वर्किंग कैपिटल इज रिकवरी। इसमें सब जो लास्ट में जो कैश इनफ्लो आ रहा है ऐसे को सेल करके और वर्किंग कैपिटल की रिकवरी को, उसका नाम है टर्मिनल कैश इनफ्लो। तो लेके सी दिस वन, इसका फार्मूला बन जाएगा टर्मिनल कैश इनफ्लो इट इज आल्सो डिनोटेड एज कैश इनफ्लो एट एंड ऑफ लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट मीन्स इन एनेक्स टाइम पीरियड। तो दिस इज इक्वल टू एसेट टू सेल वैल्यू आपको मिलोगी विच इज कॉल्ड स्क्रैप ऑफ एसेट विच इज रियलाइज, और इसको इसी WBB से कंपेयर कर लीजिए, वो आपका बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, दैट इज इक्वल टू WBB माइनस स्क्रैप। तो इनकम टैक्स का रूल चलता है जो डेप्रिशिएबल एसेट्स होती हैं उनको सेल करके जो गेन या लॉस है दैट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म। यदि आपको गेन हो रहा है तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो आपका आउटफ्लो बन जाएगा माइनस टैक्स पेड, ये आप लेस कीजिए ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और यदि आपको लॉस हो रहा है उसके ऊपर आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगी और उसको आप ऐड कर लीजिए प्लस टैक्स विच इज आल्सो कॉल्ड टैक्स शील्ड ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो ऐसे की स्क्रैप रिलाइज हो रही है, टैक्स आपको पे करना है कैपिटल गेन के ऊपर, टैक्स की सेविंग होगी लॉस के ऊपर, और वर्किंग कैपिटल की रिकवरी हो जाएगी प्लस वर्किंग कैपिटल रिकवरी। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कैश इनफ्लो या लास्ट ईयर, इसका फार्मूला बन जाएगा स्क्रैप ऑफ एसेट, उसको हम एस से शो करते हैं, माइनस टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और या तो देखो कैपिटल गेन होगा या लॉस होगा, दोनों में से एक चीज़ होती है एट ए टाइम। गेन पर टैक्स पे करना है, टैक्स सेविंग हो जाएगी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के ऊपर, और प्लस वर्किंग कैपिटल की हमें रिकवरी हो जाएगी। तो दिस विल बी टर्मिनल कैश इनफ्लो। और ये आपको हर क्वेश्चन में चेक करना होता है जो भी हम टर्मिनल कैश इनफ्लो आपको कितना मिल रहा है। ये हमने देखी डिफरेंट टर्म्स। अब देखें एक और टर्म थी कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है, दैट इज फिफ्थ टर्म डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। तो नॉर्मली डेप्रिसिएशन को चार्ट करने के दो मेथड्स हैं हमारे जो पॉपुलर मेथड्स हैं। तो फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, सेकंड इज WBB मेथड। तो कुछ स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन पर एनम, इसमें हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगी, लेकिन आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है फिर तो आपने लेनी है कॉस्ट ऑफ एसेट, और उसके ऊपर आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई कर दीजिए इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट को नॉर्मली हम R से शो करते हैं, तो आपका फार्मूला बन जाता है डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन।
और कई बार होता है आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेंशन नहीं किया है, तो फिर आपका फार्मूला बना क्या है, डेप्रिसिएशन पर एनम ये कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट। तो इट मीन्स ये कॉस्ट में स्क्रैप लेस कर ली है जो आपको रिलाइज होनी है, बैलेंस अमाउंट हमने एज ए डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करना है ओवर इससे लाइफ। तो इसमें हर साल आपकी सेम डेप्रिसिएशन आ जाएगी। डब्ल्यू मेथड में आप कैलकुलेट कीजिए डेप्रिसिएशन पर एनम। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं पहले साल कॉस्ट के ऊपर, उसके बाद जो डब्ल्यू रह जाती है बैलेंस उसके ऊपर। तो फार्मूला मिला क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इंटू कॉस्ट और डब्ल्यू ऑफ एसेट। उसमें एसेट की जो डेप्रिसिएशन है वो आपकी हर साल चेंज होती रहती है। तो ये दो मेथड्स हैं हमारे पॉपुलर। अब देखते हैं हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी अपने मेजर करनी है, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। नेक्स्ट लेटर सी व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। So basically there are two methods. So one is called the traditional methods. Number one is your traditional methods, and second we have modern methods. तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ट्रेडिशनल मेथड्स में जो भी आपने कैश इनफ्लो कैलकुलेट किए हैं फ्यूचर टाइम पीरियड के, उनकी टाइम वैल्यू मनी हम कंसीडर नहीं करेंगे। इट मीन्स उनकी प्रेजेंट वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। इट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और वी कैन से जो फ्यूचर में जो भी कैश फ्लो है इज नॉट कंसीडर्ड। इट मीन्स इनको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स। इसमें पॉपुलर मेथड्स हैं, इसमें दो मेथड्स चलते हैं मेन। नंबर वन इज पे बैक मेथड, सेकंड इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो पे बैक को हम डिनोट करते हैं पीबी, पे बैक, एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न डिनोटेड बाय ARR। देन वी हैव मॉडर्न मेथड्स। इसमें हम टाइम वैल्यू कंसीडर करते हैं। टाइम वैल्यू मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो इज कंसीडर्ड। सो इन दीज मेथड्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो इज कंसीडर्ड। इट मीन्स कैश इनफ्लो जो फ्यूचर में राइज हो रहा है उसकी हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है, जिसको कहते हैं टाइम वैल्यू मनी। इसमें जो मेजर मेथड्स हैं आपके, नंबर वन इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV। सेकंड इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड which is called PI, and number third is internal rate of return method, internal rate of return which is denoted as IRR। तो तीन हमारे हैं मेन मॉडर्न मेथड्स। अब फर्दर कुछ एक्सटेंशन देखेंगे मॉडर्न मेथड्स में लेटर ऑन। तो अब हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड्स। नंबर वन इज पे बैक मेथड। सो फर्स्ट मेथड इज पे बैक मेथड। So in this method we have to determine payback period of project. So we have to determine payback period of project, or we can say of asset. तो पेबैक पीरियड का मीनिंग होता है कि कितने टाइम में आपकी जो मनी इन्वेस्ट की है प्रोजेक्ट में वो रिकवर हो रही है फ्रॉम कैश इनफ्लो। तो पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। So payback period means in how much time, in how much time period money invested in project, जो भी मनी आपने इन्वेस्ट की है प्रोजेक्ट में और या एसेट में, विल बी रिकवर्ड। उसकी रिकवरी कहाँ से होगी, जो आपको फ्यूचर में मिलेगा कैश इनफ्लो। In how much time period money invested in project will be recovered from annual cash inflow।
इट मीन्स आपने इसमें कैलकुलेट करना है हाउ मच टाइम पीरियड, कितने टाइम में आपकी मनी रिकवर हो रही है। अब इसमें 2 केस बनते हैं आपकी। नंबर 1 केस, तो कई बार होता है कि आपने मनी इन्वेस्ट किया प्रोजेक्ट में और उसके बेस पे जो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा या कैश इनफ्लो होगा वो आपका सेम रहेगा हर साल। इट मीन्स वी से व्हेन कैश इनफ्लो पर एनम इज कांस्टेंट, तो कैश इनफ्लो डेली आपका कांस्टेंट रहता है। तो उस केस में देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। आपने जीरो टाइम पीरियड में देखिए आपने इन्वेस्टमेंट की है प्रोजेक्ट में 1 लाख रुपीज और आपकी लाइफ है 5 ईयर्स और आपने कैलकुलेट किया है कि कैश इनफ्लो हो रहा है हमारा 25,000 पर एनम। तो 1 लाख रुपीज आपने रिकवर करने हैं अपने, जो आपने इन्वेस्ट किए हैं। कैश इनफ्लो है 25, तो 25 × 4 ये बन जाएगा 1 लाख। इतनी 4 साल में आपकी जो मनी इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर हो जाएगी। तो किसी कहा कि पे बैक पीरियड, तो अब देखो इसका फार्मूला बन जाएगा। तो इसमें देखिए अब आपका सिंपल फार्मूला क्या बन जाएगा पे बैक पीरियड का। किसी की नौकरी जाएगी पी बी मीन्स पे बैक पीरियड। फार्मूला है आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है प्रोजेक्ट में, इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट लिखिएगा I0 और उसको डिवाइड कर दीजिए कैश इनफ्लो पर एनम से, दिस विल बी अवर पे बैक पीरियड। तो देखिए इस क्वेश्चन में चेक कीजिए हाउ मच की पे बैक पीरियड। इन्वेस्टमेंट की 1 लाख, कैश इनफ्लो आएगी 25,000 एवरी ईयर की सेम, इट मीन्स इट इज 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स में आपकी मनी रिकवर हो जाएंगी। तो दिस इज क्वाइट सिंपल। बट सम टाइम कैश इनफ्लो जो है आपका ये चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट। अगेन वी हैव सेकंड केस, so when cash inflow is not constant per annum, तो कैश इनफ्लो आपका कांस्टेंट नहीं है। तो उसको पहले एग्जांपल से देखते हैं। लेके सी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी 1 लाख, लाइफ इज गिवन 5 ईयर्स। अब आप एक टेबल ड्रॉ कीजिए, उसमें मेंशन करेंगे व्हाट विल बी कैश इनफ्लो फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट इन फ्यूचर टाइम पीरियड। जैसे 5 साल की लाइफ है, ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5। यू कैन राइट हाउ मच ये कैश इनफ्लो, अमाउंट आपका चल रहा है रुपीज़ में। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में कैश इनफ्लो आपको मिल रहा है 20,000, यानी कि 30,000, यानी अगेन कि 30,000, यानी कि 40,000 एंड 40,000। तो आप देखेंगे कैश इनफ्लो आपका कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो रहा है। तो इस केस में आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो अमाउंट इन रुपीज। क्यूमुलेटिव मीन्स आप इसको ऐड करके जाइए। अप टू फर्स्ट ईयर 20,000 कैश इनफ्लो है, यानी 20 + 30 50,000, 50 + 30 80,000, 80 + 40 120 + 40 160। अब आप देखिए आपने इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, 1 लाख आपका रिकवर होगा इन बिटवीन 80 एंड 120। इन दोनों के बीच में आपका 1 लाख रुपये रिकवर हो जाएगा। इट मीन्स पे बैक पीरियड है हमारा इन बिटवीन 3 एंड 4 ईयर्स। अब आप फार्मूला अप्लाई कीजिए, इस टाइप को फार्मूला इस तरीके से अप्लाई होगा पे बैक पीरियड। तो आपको लेना है मिनिमम कितने ईयर्स चाहिए आपको 1 लाख रिकवर करने में। मिनिमम है आपके 3 कंप्लीट ईयर्स, यू राइट हेयर 3। फिर आप देखिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट रिकवर करनी है 1 लाख की, और उस 1 लाख में से 3 सालों में आपका 80,000 रिकवर हो गया। अब बैलेंस जो रह गया आपका 20,000 वो आपने रिकवर करना है। तो वो हम रिकवर करेंगे अब नेक्स्ट ईयर के कैश इनफ्लो से। अब इट मीन्स हम यूनिटरी मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर में कैश इनफ्लो है देखो आपका 40,000, सो वी कैन से दैट इफ कैश इनफ्लो इज 40,000 हाउ मच टाइम इट विल टेक फ्रॉम 3 to 4 1 ईयर। तो 40,000 रिकवर करने में आपको टाइम लगता है 1 ईयर। सो व्हाट विल बी टाइम टू रिकवर दिस 20,000, तो इट मीन्स 20/40 ये बन जाएगा हाफ ईयर। तो आपका आंसर आइएगा पे बैक पीरियड 3.5 ईयर्स। तो 0.5 ईयर के आप मंथ्स भी बना सकते हैं, तो उसका फार्मूला बन जाएगा 3 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो वो 0.5 के मंथ्स ऐसे बनाने हैं, 0.5 को 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन जाएंगे 6 मंथ्स। इट मीन्स इस केस में आपने जो मनी इन्वेस्ट किया प्रोजेक्ट में वो 3 साल और 6 महीने में आपकी रिकवर हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका प्रॉफिट स्टार्ट होता है।
तो पे बैक का बेनिफिट क्या होते हैं, तो जितनी जल्दी रिकवरी होगी आपकी मनी की उतना बेटर होता है। तो हम कहते हैं डिसीजन क्या होता है इसमें, डिसीजन है आपका शॉर्ट पे बैक इज बेटर। तो डिसीजन है शॉर्ट पे बैक पीरियड इज बेटर। इतनी जितनी जल्दी आपकी रिकवरी हो रही है जो आपने मनी इन्वेस्ट किया प्रोजेक्ट में, दैट मीन इज बेटर। तो नेक्स्ट मेथड आता है हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। सेकंड मेथड है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इनकी यहाँ से डिनोट की जाएगी ARR। वो सिंपल जो मीनिंग होता है मैथमेटिकली, रेट ऑफ रिटर्न मीन्स परसेंटेज ऑफ इनकम। इट मीन्स ARR मीन्स परसेंटेज ऑफ। अब जो इनकम है, इनकम मीन्स प्रॉफिट, वो आपका चेंज हो सकता है ईयर बाय ईयर। तो इट मीन्स हम कंसिडर करते हैं ARR मीन्स परसेंटेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट। तो इट मीन्स इस केस में हमने जो मनी आपने इन्वेस्ट किया प्रोजेक्ट में, उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे कितने परसेंट आपको प्रॉफिट अचीव हो रहा है। तो इसमें दो फार्मूला चलते हैं ARR में। तो फर्स्ट फार्मूला है ARR इज इक्वल टू, अब इसमें आपको कैश इनफुल लेना है, रिटर्न का मतलब है प्रॉफिट। प्रॉफिट हम लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये कहते हैं एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसे 5 सालों का प्रॉफिट है उसको टोटल कीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, और उसको हम डिवाइड कर देंगे जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इन प्रोजेक्ट, देखिए गिनती जाएगी I0, इनको कर लीजिए 100, ये आपकी परसेंटेज आएगी। और एक और मेथड भी चलता है सेकंड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो भी कहेगा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, और इन्वेस्टमेंट को भी हम कई बार एवरेज बना देते हैं, सो यू कैन आल्सो कंसीडर एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट होती है नॉर्मली कि आपकी ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी की थी और लास्ट में कितनी रिकवर होगी। तो इट मीन्स एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू किसी का जो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग को होती है जैसे आपने ऐसे परचेज की, कुछ वर्किंग कैपिटल में मनी इन्वेस्ट की, जैसे जो कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, ये ओपनिंग बन जाएगी। और क्लोजिंग होती है जो आपको रिकवरी होगी, स्क्रैप मिलेगी आपको और वर्किंग कैपिटल की रिकवरी हो जाएगी, तो उनका कर लीजिए आप एवरेज। तो आप देखेंगे WC प्लस WC ये बन जाएगा ट्वाइस 2WC अपॉन 2, तो इतनी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सेकंड फार्मूला ये बन जाता है एवरेज इन्वेस्टमेंट का, तो C प्लस S डिवाइडेड बाई 2 प्लस WC, क्योंकि WC हमारा कांस्टेंट है जो हमारा पूरी प्रोजेक्ट की लाइफ में इन्वेस्ट रहता है प्रोजेक्ट में, तो दिस विल बी एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जनरली हम फर्स्ट मेथड प्रेफर करते हैं जब क्वेश्चन साइलेंट होता है। Like if it is specifically mentioned average investment, then we use this. तो एवरेज पैक का मीनिंग क्या है, तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू समेशन कर लीजिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और डिफरेंट टाइम पीरियड डिवाइड कर लीजिए लाइफ से, ये आपका एवरेज बन जाएगा। तो ARR में हम डिसीजन कैसे लेते हैं, जैसे टोटल प्रोजेक्ट्स हैं तो जिसमें ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगी वो बेटर है, इट मीन डिसीजन है आपका सो हायर ARR इज बेटर। तो ये हमने डिस्कस किए गोट रिग्रेशन मेथड्स, पेबैक मेथड एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इनके बेस पर। लेकिन सी एग्जांपल 1 विच इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ पेबैक पीरियड एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एग्जांपल से पहले आप सारे कॉन्सेप्ट्स और फार्मूले रिवाइज कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो लेके सी एग्जांपल 1, इसमें देखिए आपको डाटा दिया है क्वेश्चन, अ केमिकल कंपनी कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट दैट कॉस्ट ₹5 लाख एंड इट हैज लाइफ ऑफ 5 years, एस्टिमेटेड सैलरी वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ लाइफ इज 0। तो अब देखो आपको मेंशन किया है, तो आप एक मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं 0 टाइम पीरियड में एसेट में, उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट आपको दी है 5 लाख।
लाइफ इज गिवन 5 years और उसकी जो स्क्रैप हमने एस्टिमेट की है दैट इज 0 एंड टैक्स रेट इज 25%। टैक्स रेट आपको दिया है 25%। कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन कैलकुलेशन एंड द प्रपोज जो प्रोजेक्ट है कि कैश फ्लो बिफोर टैक्स। कुछ स्ट्रेट लाइन मेथड आपने फॉलो करना है तो उसमें उससे कैलकुलेशन आ जाएगी एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। कॉस्ट है देखो आपकी 5 लाख, स्क्रैप इज 0, लाइफ इज 5 years। इट मीन कैलकुलेशन विल बी 1 लाख पर एनम। अब आपको इसमें कह रखे हैं कैश फ्लो बिफोर टैक्स। कैश फ्लो बिफोर टैक्स होता है प्रॉफिट बिफोर कैलकुलेशन, क्योंकि कैश प्रॉफिट है इसमें ये बिफोर कैलकुलेशन है और बिफोर टैक्स है तो भी टैक्स भी माइनस नहीं हुआ है। तो ये आपको 5 साल के लिए है तो उसके लिए हम बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। तो आप इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए। सो व्हाट इज अवर कैश इनफ्लो। So this is our year, this is 1 2 3 4 एंड 5 ईयर। लाइफ है आपकी 5 साल की। तो अब देखें इनिशियल इन्वेस्टमेंट को होगी हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट, दिस इज 5 लाख, ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब आपको कैलकुलेट करना है कैश इनफ्लो कितना मिलेगा फ्यूचर में। तो आपको दिया है कैश फ्लो बिफोर टैक्स। कैश फ्लो का मतलब होता है इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है और ये बिफोर टैक्स भी है, इसमें दिस इज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो ये टर्म आपको समझनी पड़ती है कि क्वेश्चन में क्या की आपको या क्या आइटम दे रखी है। तो किसी गिवन 1 लाख 1 लाख 150, तो फर्स्ट ईयर के लिए 1 लाख, सेकेंड ईयर 1 लाख, देन 150, देन फोर्थ ईयर आल्सो 150। उसमें देखो अब आप माइनस कीजिए डेप्रिसिएशन विच इज सेम एवरी ईयर 1 लाख। इसको माइनस करके आपको मिलेंगे बची प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी। दिस इज 0, दिस इज आल्सो 0, दिस इज 50,000, दिस इज 50,000 एंड 150। उसमें से आप माइनस कीजिए टैक्स। सो एट द रेट ऑफ 25% ऑफ पीबीटी। तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। दिस इज 12,500, 12,500, 37,500। सो बैलेंस यू गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। So this will be 0, 0, 37,500, this is 37,500, 112,500। अब आपको देखने हैं व्हाट इज योर कैश इनफ्लो। उसमें डेप्रिसिएशन अब आप ऐड बैक कर लीजिए टैग में। डेप्रिसिएशन 1 लाख है आपकी, एवरी ईयर इट इज सेम 1 लाख, दिस इज आल्सो 1 लाख। So this will be our cash inflow per annum, which is 1 lakh, 1 lakh, this is 137,500, 137,500 and 212,500। फिर आपको चेक करना है हर क्वेश्चन में, ये को हमारा आ गया एनुअल कैश इनफ्लो पर एनम, बाकी टर्मिनल कैश इनफ्लो या कि इक्वल टू स्क्रैप जो रिलाइज होगी, फिर इसको कंपेयर करेंगे WBB से। अब देखिए स्क्रैप है आपकी 0, WBB देखो कितनी होगी। डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की 1 लाख पर एनम इंटू 5, 5 साल में चार्ज होगी 5 लाख, कॉस्ट भी 5 लाख थी तो इसमें WBB भी 0 रहेगी और कोई वर्किंग कैपिटल नहीं है। सो टर्मिनल कैश इनफ्लो है 0। तो लास्ट ईयर में आपका कोई कैश इनफ्लो ऐड नहीं होगा। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं बट जो पेबैक पीरियड एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका मैं एक टेबल और बना रहा हूँ, इसका एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं 5 सालों का। लेट अस सी ईयर ये जो 1 2 3 4 एंड 5। लेट अस राइट कैश इनफ्लो इन रुपीज। कैश इनफ्लो देखो आपने कैलकुलेट कर लिया है 1 लाख, सेकेंड ईयर आल्सो 1 लाख, दिस इज 137,500, 137,500 यानी कि 212,500।
तो पे बैक के लिए आपको चाहिए सिंस कैश इनफ्लो के डिफरेंट को उसको हम कैलकुलेट करेंगे कुमुलेटिव कैश इनफ्लो इन रुपीज, दिस इज 1 लाख प्लस 1 दिस इज 2 lakhs प्लस 137 337 500 प्लस 137 500 475,000 प्लस 212 500 दिस इज 687 500। तो सेकंड जब हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज रेट को रेट करेंगे उसके लिए चाहिए आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कैश इनफ्लो में हमने क्या किया था, पैक में हमने डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दी थी 1 लाख के, तो इसमें से यह 1 लाख माइनस करेंगे वो आपका पैक आ जाएगा 0 जिसे 37,500 37,500 एंड 112,500। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी पे बैक पीरियड। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट है 5 लाख की वो रिकवर करनी है, दिस विल बी रिकवर्ड इन बिटवीन दिस 475 एंड 687 के बीच में रिकवर हो जाएगी। तो इसमें मिनिमम 4 ईयर्स आपको चाहिए, प्लस आपको रिकवर करना है 5 लाख। 4 ईयर्स में आपकी रिकवरी हो गई है 475,000। इसमें बैलेंस जो रह गया 25 हम रिकवर करेंगे नेक्स्ट ईयर के कैश इनफ्लो से। नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो है 212,500, इसको रिकवर करने में टाइम लगता है 1 ईयर। सो व्हाट विल बी टाइम टू रिकवर दिस 25,000। तो फार्मूला है अब आपका 25,000 डिवाइडेड बाय 212,500, इसे कमिंग 0.11, सो 4.11765 ईयर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यदि आप इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दिस विल बी 0.11765 को कर दीजिए इंटू 12, so this is coming 4 years and 1.412 months, ये आपके मंथ्स आ जाएंगे। सेकंड आपको कैलकुलेट करनी है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इसमें आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज पैक अपॉन इन्वेस्टमेंट इन 0 टाइम पीरियड इन 200। तो एवरेज लेकर को इसका टोटल करके पैक लीजिए 75,000 प्लस 112,500, टोटली कमिंग 187। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए बल्कि एवरेज पैक देखिए टोटल 187,500 डिवाइडेड बाय लाइफ इज 5 ईयर्स, तो डिवाइडेड बाय 5 दिस इज 37,500। उसकी हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे एवरेज पैक 37,500 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट है आपकी 5 लाख इंटू 100, सो डिवाइडेड बाय अवर 5 लाख इंटू 100, तो दिस इज कमिंग 7.5%। ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है। उस लेक्चर में हमने डिस्कस किए कैपिटल बजटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड के मेथड्स। बेसिक कॉन्सेप्ट में नंबर 1 कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सेकंड एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, नंबर 3 एनुअल कैश इनफ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट, नंबर 4 टर्मिनल कैश इनफ्लो फ्रॉम प्रोजेक्ट, 5th वाज हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। Then we discussed 2 traditional methods, number 1 payback method and average rate of return method. Average rate of return method is also called accounting rate of return method. तो फर्दर टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।